Assalamu alaikum, Zainaira. Thank you so much for joining the session. You're welcome. I'm pretty much sure a lot of people know the main reason of having these sessions is to get an idea of how industry professionals are doing things and understand the market overall. So before we proceed to the real thing कि है कैसी इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं, I wanted to know if you can like just introduce yourself to the audience. I'm pretty much sure you are pretty much famous on LinkedIn, but just for the audience, if you can just tell me about kya chal raha hai, how's life, how's everything, and then we'll start the session. For sure. So, my name is Zanera Rafe, and I'm a mindset coach, and I specialize in neuro-linguistic programming. And it has been an amazing journey so far, alhamdulillah. And I'm very, very honored to be here. Perfect. I think that gives an idea. Let's start the conversation with the basic thing is I think right now the main issue that people usually face is they usually don't have an idea क्या growth है क्या. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा-सा इन डिटेल बात करें तो ग्रोथ हर बंदे की अलग-अलग होती है, सही है। मेरा मेन रीज़न भी यही था जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करे थे, तो यार इस तरीके से था कि हम ये समझ सकें इंडस्ट्री प्रोफ़ेशनल किस तरीके से चीज़ें देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है अभी कि जेन ज़ीज़ सही हैं, मिलेनियल सही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी पर्सन्स ग्रोथ प्लान इज़ डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपकी लाइफ़ कॉपी करूँ तो एट द एंड लाइक आखिरी स्टेज मेरा और आपका सेम हो, ठीक है? थोड़ा मुझे बताइएगा कि फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड? यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? एंड देन you start working for this creative content related field, and that's a very good thing क्योंकि 2020 when you graduated, a lot of things coming up after corona, we are growing digitally, चीज़ें बहुत बढ़ रही थी पाकिस्तान में। उससे पहले भी थी बट यस आफ्टर कोरोना पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी चेंज हुई है। तो मुझे थोड़ा बताइएगा व्हाई एडवर्टाइज़मेंट, हाउ थिंग गोइंग, क्या स्टार्ट करा, किस तरीके से रहा ताकि हम थोड़ा समझ सकें ग्रोथ को आपकी? So basically, Umair, if I were to be very honest, I started copywriting from the age of, I think, it should be around 2014, 2013, 2014. And gradually I was looking for a field where I could be very creative and it could be, to be very honest, be safe. Safe wala option tha कि I was like हुँ, security ho, safe ho, and then creatively भी थोड़ा explore कर सकूं. And which is why I had heard कि advertising was something that there's like a lot of scope in, and you can also writing is a big benefit as well, and as well as design. And I did lean a little bit towards that. So, thinking of just planning things to be very safe for myself, I went for copywriting. And gradually, after I graduated, so खुद ही से everybody knew that I did this, and I also did voice acting as well on the side. So everybody had known so that I'm famous for this, and I do this. So I started getting people कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये project हैं, ये चीज़ें हैं. Alhamdulillah, a lot of people knew me by then. And by the time I had graduated, I had already been working in the industry as an assistant manager product development, which also had like a big chunk of writing involved for the JD. So I feel like for me, writing always chose me. And even though I tried, मैं ना करूँ, I wanted to try different stuff, but it kept on choosing me. So 2024 में I fully embraced it कि okay, I will go for this. और बीच में one way or another कहीं ना कहीं content management की job आ जाती थी, head of content की job आ जाती थी, and I would obviously just explore and see how it would go for myself. But there was just this, कि, I'm not feeling that I'm not that satisfied. Like something's just there. It's not. I was. I would be like really close to my team members. I would enjoy working with everyone. I would love to like lead, but kuch tha ke, kuch missing hai. So one way or another, I would just keep jumping. And you know how the industry बट आई works. थिंक इससे इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि व्हेन यू डोंट स्टॉप योरसेल्फ एक्सप्लोरिंग से, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट फॉर द ऑडियंस, एडवर्टाइज़मेंट इज़ बेसिकली इट्स लाइक मार्केटिंग भी है मेजर्स, बट एडवर्टाइज़मेंट इज़ मोर कोरली जहाँ पे आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है, आपको एडवर्टाइज़ करना कैसे है।
ठीक है। ये बात भी ठीक है कि यू स्टार्टेड ऑफ 2020 2014 और वो एक बहुत लंबी जर्नी है जहाँ पे आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को ग्रोथ प्लान देख रहे हो तो। Yeah. उसके अंदर एक और चीज़ ये भी होती है कि आपको ये देखना होता है कि आपकी रेलेवेंसी रहनी चाहिए फ़ील्ड के अंदर। यू डोंट गो फॉर समथिंग वेरी फार जहाँ पे इंडस्ट्री उसके लिए रेडी ना हो, ठीक है? लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक लेट्स गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू समथिंग, बट उसका अप्स एंड डाउन्स उसी तरीके से होता है। आपको इंडस्ट्री रेलेवेंसी इसलिए भी ज़रूरी होती है। हो सकता है कि आप किसी को जानते हो और आपने किसी के साथ 2021 में 2022 में काम करा हो सकता है 2025 में यू कनेक्टेड अगेन एंड देन यू रियलाइज़ कि वो दोनों बहुत अलग-अलग फ़ील्ड में काम कर रहे हैं एंड वन थिंग टू अनदर एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि so you been working for almost like 6 plus years professionally या इससे भी शायद ज़्यादा? 10 plus years. 10 plus years, okay. Yeah. So इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि a lot of time university students nowadays what I see is they think कि प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है ग्रेजुएशन के बाद। बट उसमें 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 क्या होता है कि आप मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटीज़ में हम एक बबल के अंदर रह रहे होते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि गेटिंग गुड सीजीपीएज़ इज़ समथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। येस, इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स बट नॉट ऑलवेज़, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर किसी भी जॉब पे आपसे आपकी सीजीपी कोई नहीं पूछता, आपका काम देखा जाता है। मुझे ये बताइएगा कि थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, आपने किस तरीके से अपना ग्रोथ को देखा है? ठीक है, आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसा नहीं हो सकता कि एवरी डे इज़ गुड, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि जब जो चीज़ कर रही हैं वो चीज़ बेस्ट हो रही है। उसमें आपके पास बर्नआउट आता है, उसमें आपके पास कभी-कभार आप कुछ करना चाहते हैं, आप सोसाइटी प्रेशर्स की वजह से या काम की वजह से या अपने दूसरे मसलों की वजह से नहीं कर पाते, ठीक है? इन 2014 में ज़ुनैरा वाज़ नॉट दैट मैच्योर जितनी वो अभी हैं। उनको नहीं पता था कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप मतलब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट, मुझे थोड़ा बताना कि यार आपको क्या लगता है बीइंग एज़ अ गर्ल, ठीक है, अपनी चीज़ों को किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए? बिकॉज़ वी स्टिल इन द सोसाइटी जहाँ पे कहा ज़रूर जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट होती है, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव दैट कि ऐसा कुछ हो भी रहा है पाकिस्तान में। और अगर हो भी रहा है तो यस, अभी वो स्टार्ट है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को वो फेस करना पड़ता है। हमें हमें अभी भी ये देखना होता है कि अगर हम कोई जॉब कर रहे होते हैं तो 9 टू 5 और अगर हम 6 बजे आ जाएँ, जो हालात चल रहे होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बहुत बहुत जगह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़कियाँ होती हैं, बट फॉर सम रीज़न फैमिली प्रेशर और उनकी वजह से वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। मुझे थोड़ा बताओ कि आप किस तरीके से अपने रूटीन को फ़ॉलो रखते थे, बर्नआउट होता था तो उसको किस तरीके से देखते हो? आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव सिबलिंग्स, तो उनको कैसे देखते हो? अपने घर वालों को कैसे बताया कि भाई ठीक है, दिस इज़ द फील्ड? क्योंकि 2014 में बीइंग एज़ अ मिलेनियल हमारे माँ-बाप को नहीं पता था कि एडवर्टाइज़मेंट है क्या? द मैक्सिमम थिंग दे नो इज़ कि वो जो टेलीविज़न पे कमर्शियल आते हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट है, ठीक है? और ये वाहिद ऐसी फ़ील्ड है, अब वो डिज़ाइन की बात कर लूँ, वो फ़िल्म एंड टीवी की बात कर लूँ, एडवर्टाइज़मेंट की बात कर लूँ, कि यहाँ पे 9 टू 5 नहीं होता। थोड़ा-सा मुझे बताओ आपने किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करा? आगे लोगों को किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि टेकिंग एडमिशन इज़ वन थिंग, बट आपने 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप उस फ़ील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे, आप उस फ़ील्ड के अंदर काम नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? So, I would like to say a few things in response to this. Number one would be that it was very tough, to be very honest. I have also gone through all of these, barriers as a female. Ke kab kaam karna chahiye, kaha kaam karna chahiye. Because I remember I'm a big film buff and I love movies, and I really wanted to get into filmmaking at a time as well. But obviously, मैंने यही सोचा था कि permission नहीं मिलेगी, and then shoots पे आपको late होना होता है, travel करना पड़ता है. And I was like, okay, you know what? Maybe sometime later in my life, it's still on my bucket list. It's not like gone, but like, you have to make certain compromises as well. So with that being said, for me, what I realized ki priority kya thi and what was something that kept on calling me, right? And one of them was writing. And writing was something, okay, I can do this in advertising as well. Many agency में भी काम किया था, but मुझे वो चीज़ सूट नहीं की. Like for me, it was more like I feel like there aren't very a lot of boundaries here. They don't keep a lot of boundaries, especially when it comes to agency culture.
उधर का जो बर्नआउट रेट था फॉर मी, आई फील लाइक इट वाज फार मोर देन वर्किंग इन एनी अदर इंडस्ट्री. Mm. So that was very clear. I had one experience and I was like, okay, I am not working in an agency again because this does not align with me and I would be lying to myself if I keep going. और एक और चीज़ वो ये भी थी कि as much as I am a big advocate for local industry as well, local clients did not sit well either. I was like, okay, बट आई थिंक that's a उसमें एक अच्छी चीज़ है यार, सॉरी टू कट यू, बट उसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपना स्टार्ट लोकल क्लाइंट से करें। क्योंकि जितना हार्ड टाइम वो आपको देते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि लोकल क्लाइंट अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है? हमें मार्केट को समझना पड़ता है, क्योंकि लोकल क्लाइंट उस तरीके से बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोफ़ेशनली बिहेव नहीं कर रहे, जिसकी वज़ह से वो वैसे काम कर रहे हैं। There are people who are giving services for much lesser, that's why they think, क्लाइंट को लगता है कि हर बंदा वैसे ही काम करता है, ठीक है? पहले आपको समझाना पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको रियलिटी चेक्स आपके एक्सपीरियंस में मिलते रहते हैं। अम्मा-अब्बा को कैसे मनाया? मतलब आर यू फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मीडिया स्टडीज़ पहले कोई कर रहा है? क्योंकि जब आपका कोई बड़ा बहन-भाई कर रहा होता है ना, ठीक है? तो मनाना और समझाना थोड़ा बेहतर होता है कि भई मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि वी स्टिल आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे माँ-बाप को अभी तक लगता है कुछ को तो, कि भाई इंजीनियरिंग और मेडिकल कर लेते तो लाइफ़ थोड़ी अलग होती, ठीक है? बट वो मिथ क्लियर हो जाती है जब आप 4 साल ग्रेजुएट करते हो, उसके बाद आप बैठ के सोच रहे होते हो कि यार जितना पैसा मेडिकल में लगना था उतना पैसा तो मीडिया में भी लग गया। ठीक है, तो हाउ हाउ डू यू लाइक, हाउ वाज़ द स्टोरी? मतलब I किस तरीके से? for me, this was a very sweet spot. I was very lucky and I was very fortunate in this. Alhamdulillah, alhamdulillah, especially when it came to media studies. One of my dad's mamus was already teaching in the university I had graduated in, and he was the person who was like, इसके लिए है, media studies is for her and you should do it. And my dad couldn't say no. And a few of my cousins also had already like done media studies. तो वो एक और बैकअप मेरे लिए क्रिएट हो गया था. हाँ, फिल्म और टीवी वाला थोड़ा सा I knew would have been a problem, but advertising was completely safe. So I was like, okay, um, let me just try this and let me go with this. आई थिंक एडवर्टाइज़मेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। अगर मैं तीनों की बात करूँ, 2015 we get in the university, just for the audience, we both for from on the same university, but उस टाइम पे इट वाज़ रिस्की, ठीक है? लोग कहते थे कि चलो यार एडवर्टाइज़मेंट में तो जॉब मिलने के चांसेस फिर भी हैं। फ़िल्म एंड टीवी कब पता नहीं हम डायरेक्टर बनेंगे, कब डीपी बनेंगे या कब हम एनिमेटर बनेंगे, क्योंकि देन बोथ द इंडस्ट्री वर नॉट दैट गुड दैट टाइम, बट नाउ इट्स गुड। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि यार अभी जैसे आपके पास, आप तो लकी थी, आपको टीचर मिल गए, आपको स्टूडेंट, आपको जो है वो कज़िन्स मिल गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेंटर कर दिया आपको, जिसने बता दिया। हाउ डू यू थिंक मेंटरशिप गिव्स यू व्हाट यू आर? लाइक अगर आपके पास सही मेंटोर्स होते हैं, ठीक है? बिकॉज़ दैट्स अलाइन विद द पॉइंट, नाउ यू आर बिकमिंग मेंटर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन लेटर ऑन, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। बट जस्ट फॉर द ऑडियंस, लाइक मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है मेंटोरशिप क्या होनी चाहिए? कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट से सुनने को ये मिलता है कि यार हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है? हमारे अम्मी-अब्बू ने कहा और हमने वो चीज़ कर ली, एंड टिल द डेट इन 2025 येस पीपल आर रीचिंग आउट टू मी एंड दे वर लाइक कि हमने ये चीज़ कर ली, अब हम आगे क्या करें? एंड आई वाज़ लाइक कि अगर आपने ये चीज़ करी हो तो आपने 4 साल में, जब आपने खुद नहीं सोच पाए कि आप क्या करेंगे, तो हाउ समवन एल्स कैन गाइड यू? ठीक है? मतलब ये वो वाली बात है, जब आपको ट्रैक पर चढ़ना था उससे पहले आपने पूछा नहीं, और अब आप ट्रैक से उतरने वाले हैं और अब आप सोच रहे हैं कि अब मुझे पता है कि मैं क्या करूँ। व्हाट डू यू थिंक अ मेंटर कैन डू इन समवन लाइफ? How early a mentorship is required? Because sometimes, with all due respect, yes, I do respect my parents. I'm pretty much sure everyone should do that. But at the same time, millennials के माँ बापों को नहीं पता था कि भाई ये फील एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इज द सेम थिंग कि अगर मैं आज किसी अपने अम्मा अब्बा को बोलूँ कि मैं विदाउट नोइंग देम चैट जीपीटी के, मैं आपको बोलूँ कि मैं एएमएल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो दे वर लाइक ब्लू, उनको नहीं पता होगा। रिस्पेक्ट और डिसीजन में साथ देने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपके माँ-बाप कह रहे हैं आप इंजीनियर बन जाओ और आपको पता है कि आप नहीं बन सकते, तो उसके बाद आप यही करोगे, या तो पुल गिराओगे या तो किसी बंदे की जान ले लोगे मेडिकल करने के बाद, ठीक है? सो हाउ डू यू थिंक
what a mentor can do in a life. Oh my God. They can change your life if you let them. They can change your life if you let them. But So what I see, how to select it? Like for example, मसला ये भी तो है कि लोगों के पास मेंटोरशिप तो है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि वो मेंटोर सही है भी या नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेंटोर इस तरीके से बनाते हैं, ओके फाइन यार ये मुझसे बहुत बड़े हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनसे पूछ लेता हूँ। मतलब आपको जो पढ़ना है उसने वो नहीं पढ़ा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ करा था कि मेरे टीचर, मेरे मेंटोर सिर्फ तब हो सकते हैं जब वो इंडस्ट्री रेलेवेंसी मैच करेंगे। नॉट एवरी टीचर ऑफ योर्स कैन बी योर मेंटोर, क्योंकि अगर वो आपका मेंटोर है तो एट द एंड ऑफ द डे आप भी टीचर ही बनोगे, अनटिल और अनलेस कि उसने कुछ ऐसा करा हुआ हो जो आप बोलें। yeah. इट्स मोर लाइकली समथिंग कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार जॉब फेयर चले और नौकरी मिल जाएगी। और मैं कहता हूँ कि भाई अगर जॉब फेयर में नौकरी मिलनी होती, कोई आपको आके नौकरी क्यों देगा? आप जिसकी ज़रूरत है वो उसके पास जाता है। इट्स मोर लाइकली मतलब अगर आप बाहर खड़े होके चिल्लाना भी शुरू कर दोगे, मैं बहुत अच्छी मेंटोर हूँ, मैं मेंटोरशिप देना चाह रही हूँ। ऑडियंस टू ऑडियंस बहुत अलग है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए मैं सुनहरा बहुत अच्छी मेंटोर हूँ। वहाँ Absolutely. लाइक व्हाई टू हैव अ मेंटोर, ठीक है? एंड हाउ टू चूज़ इट, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक यार ये चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए अपने मेंटोर में, क्योंकि मेंटोर ऐसा है कि मेंटोर आपके लिए बहुत व्हाट आई पर्सनली बिलीव अ मेंटोर कैन शिफ्ट योर लाइफ 360। Yes. और अगर सही नहीं है तो वापस 360 भी कर सकता है, वापस भी 0 पे ले आएगा। सो योर पॉइंट्स ऑन दैट। So I know this is a very evolutionary process और मेरे लिए भी ये answers बहुत काफ़ी टाइम बाद हुए थे। Like really near my 30s. I spent a long time of my life just going from one thing to another until I found the right mentors. Um, you need to know who you are as a person the soonest you can. And I feel like कि हर किसी को ना time लेना चाहिए to understand who they are, what they want and why they want it in life. जितना early आप ये अपने आप से question करना शुरू कर देते हो, उतना जल्दी you start to understand. Yes, बिल्कुल certain नहीं होते आपके pathways उसके बाद. But you get to, explore things from a perspective which are supposed to align with who you are as a person, right? आपको पता चल जाएगा कि who's good for you and who's not good for you. But the sooner you know what you want. So for me, for example, I'm very big on finance. I'm very big on, like financial responsibility. And I am someone who loves thinking big in terms of money. So this was something I always was fascinated by. I creative stuff is something that I really, really like. So I know कि मैं these are the things that I want to excel in. So I would choose my mentor accordingly, right? Someone who has experience in these things. You can't just blindly make someone your mentor because if you do that, obviously, वो जो भी project कर रहे होंगे, you're going to start to adapt to what they're doing. So the soonest you know where you want to go in life, or at least know कि आपकी क्या qualities हैं, what you're good at, and how do you want to make them better. That way, you'll be able to attract that kind of mentor as well in your life. That's my answer for that. फेयर इनफ, अभी के लिए सही है जब तक हम इस पे नहीं आती है सुनहरा मेंटोर कैसे बनी। लेट्स गो टू द रियलिटी चेक, द रियलिटी चेक ऑफ लीविंग द 9 to 5, द Yeah. रियलिटी चेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वंस यू बिकम एन एम्प्लॉई यू विल बी एन एम्प्लॉई फॉर योर Oh yeah. रेस्ट ऑफ योर लाइफ, Oh ठीक yeah. है। बहुत सारे इसको अगर मैं थोड़ा सा क्रिस्प करूँ कि पाकिस्तान में आई थिंक 99% एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान के पठान के होटल पे बैठ के बनते हैं। Every boy, every girl in the group want to start something, but 99% लोग उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके पास रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क लेने की काबिलियत ही नहीं होती, ठीक है। नाउ दैट कम्स टू अ वेरी वेरी बिग पॉइंट ऑफ व्हाई आई बिलीव कि जेनज़ीज़ हमसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। मेरे घर के अंदर 2 जेनज़ी हैं, मेरे दोनों छोटे बहन-भाई। वो मुझसे बहुत अच्छे रिस्क टेकर्स हैं, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी वो रिस्क लेके उनको समझ में आ जाता है, तो उतने ही जल्दी उनकी ज़िंदगी में पता होता है कि यार ये चीज़ें ट्राई करनी है और ये चीज़ें नहीं चल रही। तो आप कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। मी बीइंग अ मिलेनियल हमने आई थिंक 30-35 इयर्स लगाए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि अब टाइम है कुछ करने का, ठीक है।
एंड समटाइम्स वी मेक थिंग्स वेरी ऑब्वियस। हम कहते सब हैं, हम सब कहते हैं कि यार नहीं हमें कुछ करना है। पाकिस्तान में अगर मैं अभी भी ट्रैवल करता हूँ, मैं किसी भी दोस्त से मिल रहा होता हूँ, मैं किसी भी बंदे से मिलता हूँ और वो कहते हैं कि हाँ यार हमें कुछ अपना स्टार्ट करना है, बट वो स्टार्ट हो नहीं पाता। ठीक है, यू डिड इट इन 2024, यू क्विट योर 9 to 5 and start doing what you really wanted to become or what you really wanted to do. Let's be very honest. I wanted to know the reality. ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, छोड़ दो कर दो हो जाएगा, बट द हार्ड रियलिटी इज नॉट दैट गुड। क्योंकि जब आप 9 to 5 कर रहे होते हैं, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट यार, आपको पता होता है कि वट एवर फक अप यू विल गोना डू इज एट द एंड ऑफ द डे 30th को आपकी सैलरी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यू कैन टेक सिक लीव एज मच एज यू वांट, जब तक जितनी आपके फिजिकल कैलेंडर में मौजूद हैं, यू कैन प्लान योर एनुअल लीव, बट देन देयर इज अनदर चंक ऑफ इट कि या तो आप उस वही चीज़ को एंजॉयमेंट करते रहें अगले जब तक आप मरते नहीं हैं, या तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करें और कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं अपने लिए जहाँ पे आप अपने लिए कुछ कर सकें। जहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा एक और चीज़ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ग्रोथ की डेफिनेशन कहने के लिए अलग होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो होती पैसा ही है। ठीक है, बिकॉज एनी पर्सन हु आर स्टार्टिंग, जो कि अच्छी 3 4 5 साल काम कर रहा हो, वो उतनी सैलरी या उतना कैश आउट कर ही नहीं सकता अपने बिजनेस में स्टार्टिंग ऑफ जितना उसको मिल रहा होता है। ठीक है, हाउ वाज योर लाइफ व्हेन यू क्विट इट, व्हाई डिड यू क्विट इट, एंड व्हाट आर द राइट स्टेप्स? बिकॉज आपकी राय इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वो चीज़ कर चुके हो। ठीक है, आई काइंडा डूइंग इट बोथ, मैं दोनों कश्तियों में सवार हूँ और मुझे वो बड़ा मज़ा आता है। आई वर्क लाइक दिस, आई वर्क 14 16 hours a day एंड आई एंजॉयड इट। ठीक है, बट वो मेरा अपना स्टाइल है, मैंने अपने तरीके से देखा, आपने अपने तरीके से देखा। बीइंग अ गर्ल, क्विटिंग अ जॉब, डूइंग व्हाट यू लाइक, हाउ इट लुक लाइक? First of all, I'm going to be very honest with you. Yes, for a lot of people, financial growth ही growth दिख रही होती है, and that is a reality. But I left a very big paycheck when I quit my job, and I did not have the sufficient savings either. But एक होता है ना कि for a long time, 1 डेढ़ साल तो आप लगा लें where my body was telling me कि burnout हो रहा है, you're pushing yourself, you're dragging yourself from one opportunity to another, and you are just dragging yourself. I feel like कि everybody knows what they want. वो आपको हॉन्ट कर रही होती है चीज़ कहीं न कहीं इन द बैक ऑफ योर हेड वेयर यू न्यू यू वुड बी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग टुडे। कहीं न कहीं दिस वुड हैव बीन हॉन्टिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो, इफ यू वर पुटिंग समथिंग ऑफ, यू नो इट। We can say कि we didn't know it. हाँ, ठीक है, till an extent you might have not, but we know what we want. And I feel like कि मेरी जो calling थी, it was there. Alhamdulillah, I do have a father who's a visionary, and उनकी वजह से I have that risk-taking ability as well. And I do agree कि Gen Zs do take far more risks as well, but I feel like कि मेरा जो तवक्कल है ना, दैट्स लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स अ टूल। एंड जब मैंने उसको शेप करना शुरू किया ना, माय एंटायर लाइफ हैज चेंज्ड। एंड yes, ठीक है, to be on the safe side, you should have sufficient savings for 3 to 3 months, 6 months, whatever, how long you want to go for. You feel like कि आपका एक buffer amount होना चाहिए, that's there. But I also feel like कि आप जब एक readiness शो करते हो ना कि you're down to do this, you're going to do this no matter what, and you're willing to commit 100% कि चलो ठीक है, अगर मुझे ये स्किल सेट के लिए कुछ और स्किल सेट सीखने हैं। When you put that energy in, when you put that motivation in to do that, everything responds differently. So I feel like it's sahi hai, safely, securely, things can, like take their time. But also I feel like the more ready you are, the more sooner you're going to get the responses. वो फिर आपने इतना कोई ऑथेंटिक कमिटमेंट अपने आप से करना होता है कि सही है मुझे ये चीज़ नहीं आती, दिस इज व्हाट आई एम अवॉइडिंग टू गेट टू दिस पॉइंट। तो if I start working on what I'm avoiding, दैट्स वेयर द आंसर लाइज़। बिकॉज़ हम लोग सारी चीज़ें बैक बर्नर पे डाल रहे होते हैं जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, वो हम नहीं कर सकते। हम उसको एक लिमिटिंग बिलीफ बना के वी आर जस्ट लाइक ओके दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट
Who said that? You can. Obviously, it's going to require work. You're already working. आप already इतना time दे रहे हो हर चीज़ को. आप इतनी energy निकाल रहे हो. आप उसको सोचने में कितना time दे रहे हो. उसको stress करने में. Why don't you just do it for something you've been wanting to do? So for me, starting off, Alhamdulillah, even though I left a very big paycheck and I was the breadwinner of the family as well, and there was like I remember मैंने अपने husband को message किया था right before I quit my job कि I've done it and I'm doing it बस, and he was like okay सही है कर लो ठीक है, because he knew कि मेरी अब बस हो गई है, मैं नहीं कर सकती, and I knew कि ठीक है it's not going to be that easy, but I am going to go all in. And honestly speaking, alhamdulillah, alhamdulillah, it was the best decision ever. I don't want to call it luck. I can say that I was successful and fortunate, and alhamdulillah, Allah me always has my back. I did get a very good client, which turned out to be mentorship as well for me. So things have been very good. और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हाँ, ups and downs आएँगे, gap भी आएगा, time भी ऐसे आएँगे कि where you might not even have money in the bank, where you have to take a certain move for yourself, make a certain risk assessment for yourself. But you have to have faith, especially as an entrepreneur. I feel like कि आपका mindset जो है ना, it has to be very, very strong. You're either all in or you can't do it. So if you're all in, that means you have to do whatever it takes to get the work done. Fair enough, क्योंकि what I personally believe is the best thing lies in the work that you're not doing as well. क्योंकि आप उसे Yes. सोच रहे होते हैं और आप वो कर नहीं रहे होते। जिस दिन आप वो कर लेते हैं, उस दिन आपको पता चलता है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मोटिवेशन हो गई, छोड़ भी दिया। अब आ जाते हैं छोड़ने के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो ये होता है कि आपको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होती है कि यार, हमने ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी। Yeah. हमें अपने आप को बेचना शुरू कर देना चाहिए था। अपने अपने आप Mhm. के बारे में एंडोर्स करना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि जब हम 9 टू 5 कर रहे होते हैं ना, तो वो बड़ी स्टेबल चीज़ होती है। आप आपके पास एक छोटा-सा काम होता है, आप उसके अंदर मास्टरी हासिल करते हैं और आप वही कर रहे होते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने जो कंटेंट लिखा है मार्केट में, वो चल रहा है, सही है, कंपनी में आग लग जाए, आपका मसला नहीं है। एचआर काम नहीं कर रहा, आपका मसला नहीं है। पैसे नहीं आ रहे, आपका मसला नहीं है। यू आर डूइंग व्हाट यू आर गुड एट इन योर कंपनी, ठीक है? व्हेन यू स्टार्ट योर ओन वर्क, you need to come up with care. What I personally believe, if you can't become a good salesman, you can't become a good mentor or a person or a business professional or an entrepreneur, या रेडी भी लगानी हो आपको, अगर आपको अंडे भी बेचने हैं, आपको आलू भी बेचने हैं, तो you need to become a salesman, ठीक है? And the best and the most important thing for a salesman is to sell the belief कि मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में, प्लीज़ बिलीव मी, और आप वही चीज़ करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है? सो कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि लिंक्डइन के कवर अपडेट कर दो और लोगों को अच्छी पोस्ट बना दो, कैरोसेल बना लो, एंगेजमेंट ले लो, ठीक है? बट हम ये भूल जाते हैं। आई आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन पर्सन टुडे एंड शी वाज़ लाइक, आई वांटेड टू कम टू दुबई। आई वाज़ लाइक, गुड, आगे क्या है, मतलब सोचना तो अच्छी बात है, प्लान क्या है आपका? एंड शी वाज़ लाइक, यार ये मेरी एंगेजमेंट ऐसी है। मैंने कहा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंगेजमेंट, क्या है? ऑडियंस तो हर बंदे के पास है। क्या वो ऑडियंस आपकी रिलायबल रिसोर्स है जो आपको आगे चल के नौकरी देगी या आपको आगे चल के हेल्प आउट करेगी? व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द राइट स्टेप्स दैट यू टुक? और आई एम प्रीटी मच श्योर हर सही स्टेप तो नहीं लिया होगा, बहुत सारे फक अप हुए होंगे, अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, आपने देखा होगा ओके फाइन यार, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कर लेते हो, तो इनिशियली आपको ना उसका आपको उसको बारे में पता नहीं चल रहा होता है। दैट्स द सेम थिंग इमरान खान वाले केस में, उसने बोला भाई मुल्क चल रहा है, अच्छा ही चल जाएगा। और जब आप उस दलदल में घुसते हो और आपको पता चलता है ओके फाइन, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बुरा कर रहे हैं। मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मुझसे अच्छा नहीं हो रहा। राइट स्ट्रैटेजी बताइएगा कि व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ किस तरीके से लेके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पैनिक कर जाते हैं। Yeah. ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि लड़कियाँ पैनिक हो जाती हैं, क्योंकि अ, क्योंकि हो जाती क्योंकि हो जाती है ना, मतलब उनका शक्कर इस Yeah. तरीके से मैं
देखिए मैं इसमें ये चीज़ देखूँगा, जैसे अभी आपने कहा ना कि वे यू लेफ्ट योर जॉब बिकॉज़ यू नो कि मुझे सिर्फ़ एक बंदे की हाँ सुननी है, वो आपका हस्बैंड है। ठीक है? आपने उसको कॉल करी, उसकी एक्नॉलेजमेंट है मैं कुछ भी कर लूँगी। उसकी एक्नॉलेजमेंट है मैं कुछ भी कर लूँगी, वो आपके अम्मा-अब्बा हों, वो आपके भाई-बहन हो, आपके हस्बैंड हो, ठीक है? आपके पास एक्नॉलेजमेंट है और आप लोग को बनाया है सर, ठीक है? और कोई बुराई नहीं है, मतलब हर बंदे को एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। मैं सोच रहा हूँ कोई एक और बंदा भी कह देगा तो अच्छा है ना, एक से भले दो। कि कल को अगर वो चीज़ नहीं चली तो मैं बोलूँगा तो कि भाई मैं तो कर रही थी, मुझे रोक लेते। तुम तो अक्लमंद थे, तुम बोल देते भाई नहीं छोड़ो, ठीक है? सो व्हाट आर द राइट स्टेप्स? हाउ टू सेल योरसेल्फ? हाउ टू डू पर्सनल ब्रांडिंग? व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग? हाउ टू बिल्ड योर ओवरऑल एम्पायर, ठीक है? एंड एन एम्पायर इज़ बीन लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि लाखों लोग आपको जानें। अगर आपका बिज़नेस 10 लोगों से चलता है और आपको सही 10 लोग जानते हैं, वो भी बहुत है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक पोस्ट की एंगेजमेंट आपके घर पे सैलरी लाके नहीं देगी। रियलिटी चेक बहुत अलग है। क्योंकि हम जो पोस्ट देख रहे होते हैं वो बंदों की हफ़्ते की 2 दिन की होती है। दैट्स द सेम कन्वर्सेशन आई हैड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हू वाज़ इन यूके एंड आई वाज़ लाइक यार मज़े है तेरी लाइफ़ के। वो बोलता भाई मज़े नहीं है, जो मैं डाल रहा हूँ वो मेरा सैटरडे संडे है। मेरा मंडे टू फ्राइडे किसी को पता भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा मंडे फ्राइडे कहाँ जाते हैं। एंड देन यू रियलाइज़ ओके फाइन, जो भी आप देख रहे हैं वो फेक है। जो भी आप देख रहे हैं वो रियलिटी का एक छोटा-सा पार्ट है। हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू स्टार्ट योर पर्सनल ब्रांड? हाउ डू यू स्टार्टेड ऑफ? क्या मिस्टेक्स करी? क्या लगता है लोगों को नहीं करनी चाहिए? क्या सही तरीका है उसका? Okay. So number one, I'll be very honest. अब जो मैं भी कर रही हूँ ना, this is very unconventional for my family and people around me. So this was like a major वो कि okay mentorship पे जा रही हूँ, mindset coach की तरफ जा रही हूँ, while I'm not, letting go of my writing career too. So this was something where I was like, okay, I'm probably all alone in this. Allah Ta'ala mere saath hai. So I know what that's like when you're going all in one with something that you really really want to do and you've been waiting to do. And वो वैसी सपोर्ट नहीं आपको मिल रही होती जैसे आप चाह रहे होते हैं. But I feel like that's so important for you to know कि आप what do you really have to offer, because that's the only way कि this is you and your commitment and you have Allah Ta'ala with you. That's all. Um Personal branding ka na, we're all creatives, you're a creative, I'm a creative. I feel like कि मेरा ना एक पहले persona बना हुआ था as being a very artsy person, and I was like, yeah, I used to look at myself like that. कि I'm a very artsy person and I'm a poet and stuff. तो मुझे हर वक़्त ऐसे लिखना चाहिए या मुझे ऐसे ड्रेस अप करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई वुड लेबल माय सेल्फ एज़। और उन लेबल्स में ना आई व्हाट आई रियलाइज़ वाज़ दैट कि मेरी जो एक ब्रांडिंग वॉइस होती है ना, इट वाज़ वेरी अनक्लियर। इट वाज़ वेरी अनक्लियर, इट वाज़ वेरी लाइक it wasn't very authentic, even though मुझे लग रहा था कि शायद I'm speaking my truth, but honestly speaking, the more simpler I became with my personal branding, the more easier and the more honest it was for me. Like literally people, anyone would just want to know, okay, what you're doing in your daily life. छोटे से छोटी चीज़ों पे how can you add value? Everyone wants those tips, everyone wants to know what's going on like that. And we all have that to offer. चाहे हम artist हो या हम कोई industry professional हो, we all have something to offer in that way. We just have to understand कि हमारा passion क्या है. With that being said, एक तो with my journey, I got to understand कि मेरी messaging कैसी होनी चाहिए, and I realized कि my messaging should be more clear rather than making it over complicated just because I'm an artsy person. Um, so through that clarity, I feel like a lot of people got to know me better. They got to know what I'm doing. And I feel like, Alhamdulillah, that was very helpful. One of the major things I feel like everyone should do if they're going all in as an entrepreneur, I feel like a 6 months ka buffer aapko apne aap ko dena chahiye. 6 months ka buffer in terms of savings, 6 months ka buffer in terms of knowing that anything can come up. You might not know how to handle a certain situation. You will need time to do it. You have to give yourself time and try your best to communicate it with those that are reliant on you as well. Ki, I need 6 to 8 months, at least 6 months, to get myself, like sorted with this. Because अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे एंड क्योंकि एक नई ट्रांजिशन है ना, इट्स अ न्यू थिंग। हमें लग रहा हमारे दिमाग में कुछ और होता है कि ओ अब फॉर एग्जांपल फॉर मी आई टेल यू, अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स व्हेन आई स्टार्ट माय वर्क, बट
just a few months after there was a gap for 2 months. And I was like, questioning everything. Oh my God, ये मैंने क्या कर लिया? And I'm sure every entrepreneur goes through this as well. Someone who's a freelancer as well, they go through this. And I was literally questioning my life choices. Oh my God, I made so much money in the start, and अब मैं क्या करूँगी? And is it still going? और अब इतना ज़्यादा डाउटफुल होना शुरू हो जाता है अपने साथ कि आप बस अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू अपनी ब्रांडिंग ही करना शुरू कर देते हो और वो बहुत ऑफ ट्रैक हो जाती है। Give yourself a buffer of 6 months, 8 months, 1 year, that would be amazing. But give yourself time to experiment and know, okay, this would work, this might not work, and just try new things that you've been wanting to and forget about how it's going to look. Just, you know, simple चीज़ों में ही beauty होती है. Like, you can just share whatever you want, whatever aligns with you. You don't have to get pressured up by, कि, "Oh, okay, इसकी messaging ऐसी है या इसकी messaging ऐसी है," even though that really helps. But know what you really want and just start putting yourself out there bit by bit without worrying कि ओ बैकलैश आएगा या कोई पसंद नहीं करेगा। हम लोग बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं कि ओ कितने व्यूज़ मिले, कितने लोगों ने ये किया, कितने लाइक्स मिले। That's fine because this is our business as well at the end of the day, but sometimes you won't get those views. Sometimes you're not going to get that support. But at the end of the day, you have to really be there for yourself. इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही, छोड़ दो जो आप कर रहे हो. You have to consistently keep going with things. So I would say कि try to build like a secure buffer amount as well for yourself. Build a plan for yourself. कि, okay, this is what I'm going to do. And keep some space for trying new things to support that because as you know, technology is always changing. We have to be adaptive with things. So we need to leave some room for new things to happen as well. Fair enough. I think I'll add one thing is that I I always believe in a terminology, Japanese terminology that's Kaizen. So Mm. Continuous improvement. yes, that's what Apple is doing. That's what Yeah. Nikon, Canon is doing. That is what every company is doing. हमें हम ये भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार लेट्स सिट एंड चेंज एवरीथिंग वंस एंड फॉर ऑल। दिस इज नॉट हाउ इट गोज। हमें हमें हर चीज़ एक ही दिन में करना रहता है। A lot of people Yeah. reach out to me and they were like यार A lot of people are selling this online as well. It's like they solutions, they don't work. They don't work. यार व्हाट आई पर्सनली बिलीव दे डू फॉर सम पीपल एंड पीपल थिंक है उनका भी चल जाएगा। ठीक है, नॉट एवरीवन इज done a need, not everyone's meme got famous and got featured and then they become celebrity. We need to understand कि आपका वक्त आपके हिसाब से आएगा और ज़रूरी नहीं है, नॉट एवरीवन इज मेंट टू बिकम समथिंग। ठीक है, हर इंसान को देख के जब आप किसी को देख के कोई चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, देन यू बिकम द कार्बन कॉपी। ठीक है, आप उतने ही फेमस होंगे जितना ज़्यादा वो फेमस हो सकता है, क्योंकि अब वो जितना फेमस होगा आपको लोग उतना देख रहे होंगे। बट आपको ये चीज़ देखना होता है कि आपने थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट क्या लेकर आई है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी स्टडी इन स्कूल्स। ठीक है, हम अपने 5 क्लास तक एबीसीडी लिखना सीखते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमने पहले डॉटेड सीखा, फिर लाइन सीखा, फिर Yeah. कैलिग्राफी सीखी एंड देन व्हेन वी केम इन द 10th स्टैंडर्ड वी अंडरस्टैंड कि ओके फाइन ये लेटर्स मिलके वर्ड बन जाते हैं। बट वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि यार हम इस तरीके से सीख रहे होते हैं। बट फेयर इनफ जो भी आपने पॉइंट बोले, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव यू ग्रो व्हेन यू हैव पीपल जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। आप उन जैसे बनते हो जिन जो आप जैसी आपकी सराउंडिंग होती है, ठीक है? Yes. आई डोंट बिलीव आई डोंट बिलीव इन दोज़ पीपल जो ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई हम कर लेंगे। क्योंकि दिस इज़ व्हाट लाइक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है वाला हिसाब कि जब आपको कुछ जैसा बनना होता है, तो आपको उन लोगों में उठना बैठना पड़ता है। आपको उनके ट्रेड्स ऑफ देखने पड़ते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, तो आप ट्रेडर्स को देखोगे। इफ यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, यू कैन बिकम यू यूज़ यूट्यूब। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इतना तेज़ आ रहा होता है और इतना तेज़ जा रहा होता है कि आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। आपको ये चीज़ देखनी होती है कि यार ठीक है यार, मैं किस तरीके से सीख सकता हूँ। तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद गिरो, खुद खड़े हो, फिर खड़े हो और फिर आपको 5-10 साल बाद ही रियलाइज़ हो कि ठीक है, अब मैं ये सही कह रहा हूँ।
दूसरा तरीका ये होता है कि जो पहले लोग गिर चुके हैं उनसे सीखें और समझने की कोशिश करें कि यार वो चीज़ वो क्यों नहीं कर रहे। ठीक है? दैट इज़ द सेम एग्ज़ाम्पल आई टेल एवरीवन जो मेरे पास आते हैं और जिनके लिंक्डइन पे कवर नहीं लगा हुआ होता या कोई ऐसी चीज़ नहीं, जिस कोई एक सेशन इनकम्प्लीट होता है, मैं कहता हूँ यार जस्ट इमेजिन एक बहुत बड़ी टीम है लिंक्डइन की, जिसने ये वेब पेज बनाया है। उसने कुछ सोच के वो चीज़ बनाई है, उसका कोई पर्पज़ है, ठीक है? देयर इज़ अ फुल यूएक्स रिसर्चर टीम जो बैठी हुई होगी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? जिसने वो चीज़ बनाई है, जिसका कुछ पर्पज़ है, जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक यार कनेक्शन बिल्डिंग से आप क्या कर सकते हो? बिकॉज़ नाउ यू आर डीलिंग विद पीपल। पीपल इक्वल्स टू योर करेंसी। आपको जितने लोग Yes. जानेंगे, जितने लोग आपके पास आएँगे, जितने लोग आपकी मेंटोरशिप लेंगे, दैट कन्वर्ट इनटू योर मनी, ठीक है? Yeah. एंड देन यू हैव टू रियलाइज़ कि यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर एवरीवन, बट यू आर गुड फिट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। Yes. That comes to a point a lot of people on LinkedIn or different platforms, they have multiple people, ठीक है? मतलब 50 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों को जानते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। हर किसी को फ़ॉलो करा हुआ होता है, हर किसी का कंटेंट देख रहे हैं। बट वो अपनी चीज़ भूल जाते हैं कि यार मेरा क्या वो है? मतलब इट्स मोर लाइकली इफ यू वांट टू बिकम अ गोल्ड स्मिथ, तो आप लोहार के साथ दोस्ती करके क्या कर लोगे? ठीक है? उसको वो पता ही नहीं है ना कि कितने नज़ाकत से वो चीज़ हो सकती है। उसको वो पता है कि भाई मैंने तो तेज़-तेज़ काम करना है। देन यू नीड टू रियलाइज़ कि आप किस चीज़ में हो। दैट इज़ द सेम थिंग दैट I see in this गपशप थिंग। आई स्टार्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कम अप टू मी यार ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा मैं वैसा कर ही नहीं रहा। मैं अलग तरीके से चीज़ कर रहा हूँ। मेरी ऑडियंस कम है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि आप कुछ को सिखा दो, कुछ को कोई और सिखा दे, कुछ को कोई और सिखा देंगे। सब सिखा देंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़ुनैरा अगर अभी मेंटोर बनी हुई है तो दुनिया में सिर्फ़ एक वही मेंटोर है। ना आप सबको सिखा सकते हैं, ना सबको आप सब आपको समझ में आएँगे, ना आप सबको समझ में आएँगी, ठीक है? व्हाट्स द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो कनेक्शन बिल्डिंग के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव जब आप लोगों से बात करते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सिखाने की जगह आप बहुत कुछ सीखते भी हैं उनसे, ठीक है? Absolutely. क्योंकि कभी-कभार आपको लगता है कि यार ये चीज़ सिर्फ़ मैं फ़ील कर रही हूँ या ये चीज़ मेरे साथ मसला है और फिर आपको पता चलता है नहीं यस देयर आर पीपल हू हैव द सेम इश्यू, ठीक है? व्हाट्स द राइट माइंडसेट कनेक्शन बिल्डिंग कैसी करनी चाहिए? क्या होता है उससे और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? नुकसान तो आई डोंट थिंक सो है, लेकिन अगर है भी तो कोई बताइएगा। So, like you said, and I think I would relate this to my earlier point as well. Okay, when you know who you are, and as soon as you know what your values are, I feel like ये दुनिया आपकी change हो जाती है. And like you said, yes, you are literally 5% of all the people you sit with, completely based on that. And who you surround yourself by is extremely important in life. If you want to be successful in something, you have to surround yourself with the right people. Ha, of course, कभी-कभार आपकी journey lonely होगी. There are a lot of things that are your struggles that I may not know about. No one else will know about that. There are a lot of struggles at my own. But other than that, you need to surround yourself with the right people because yes, connection and building those connections are extremely important. मुझे जो realization ये हुई थी ना जो आप बता रहे हो कि I'm not for everyone and everyone is not my cup of tea. ये वाली I kind of knew this, but जब आप experience करते हो ना as an entrepreneur, it's very different because like you said, sales and marketing is extremely important. And I have the same belief system, especially when you're a mindset coach. You have to be really good at what you're doing and you have to be able to. I mean, I feel like you need to know, okay, this person can also benefit from you. And it's not just selling from the surface. You are with them through that transformation. You have to make sure they believe that you're there with them in that transformation. So मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे रैंडम लोगों को रीच आउट करती हूँ एंड येस गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू दैट और मैं रेगुलर बेसिस पे लाइक आई डीएम अ लॉट ऑफ पीपल आई शेयर माय पोस्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल आई रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल आई आल्सो कॉल अ लॉट ऑफ पीपल बट the people that are coming to me are the people that already know me for my services और मेरा ये बिल्कुल मेरा मुझे लगता था कि ऐसे नहीं होगा आई हैड अ वेरी डिफरेंट बिलीफ सिस्टम आई थॉट कि
मुझे बिल्कुल बहुत रैंडम लोगों को रीच आउट करना चाहिए, उनसे कनेक्शन बिल्ड, एंड दैट्स फाइन, इट वर्क्स आउट इन योर फेवर एज़ वेल, एंड यू नीड टू नो दैट। But also understand who can take value from what you do that's around you. And that's where the magic happens. You never know कि आपके कोई चाची के बहन भाई है या कोई रिलेटिव है, or your friend's friend, someone that can, benefit from your service, and it does wonders. All you have to do is just keep putting yourself out there on a regular basis and share with whomever you know. And I would just say कि take follow-ups and be bold about it, because follow-up लेना आपको पता होगा. It's exhausting sometimes because आप there are times कि client आपको महीनों-महीनों ghost कर रहा होगा, and sometimes I'm just like कि यार इसको लेनी होगी सर्विस तो ले लेगा, but then I'm like, if I think as a marketer or as a salesperson, that's not the right approach. I have to keep following with that person, and I have to keep telling them कि okay, this is the value I can give you. So be bold in taking the follow-ups and keep putting yourself out there. Just don't hold back. It's okay. There are people that are like you, wow, I love your work. This is amazing. And there are people like, will block you. Please don't message us anymore. So you have to be able to have that thick skin to take both the responses and make sure कि, you keep going. That's what it is. या थोड़ा-सा ना एडिंग ऑन टू योर पॉइंट, थोड़ा-सा आपको बेशर्म होना पड़ता है। Yes. अ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीच आउट करने का तरीका क्या है? और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बस आपको वो 1 सेकंड चाहिए जिसमें वो ये रियलाइज़ कर ले, अच्छा ये इतने टाइम से लगा हुआ है, लेट्स हियर वन टाइम। कहना क्या चाहती है? करना क्या चाहती है? क्या फ़ायदा हो सकता है? बिकॉज़ देयर आर पीपल यू गोना रीच आउट, दे गोना नॉट गोना रिप्लाई। Oh, yeah. आफ्टर अ व्हाइल दे विल रीच आउट टू यू एंड यू नॉट गोना रिप्लाई फॉर देम। तो वो True. ज़ाकिर खान वाला बिल्कुल सही है कि एक वक़्त होता है आपकी एक शर्ट चाहिए होती है और आप Yes. तब आप वो खरीद नहीं सकते हो, तब आप उसको ले नहीं सकते हो। फिर एक वक़्त आता है जब आप उसको शर्ट खरीद सकते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि इतनी इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। सो Hmm. दैट्स व्हाट द फंडा ऑफ द लाइफ ऑफ सेलिंग योरसेल्फ इज़ टू बी बेशर्म अ बिट, ठीक है? अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर टाइम पे सेम मूड में होगा। Yes, there are people who made your day and there are sometime people who make your day worst, ठीक है? But at the end of the day, it's a good thing. हमेशा उठें, फिर से लगें, काम करें, उस पे और मेहनत करें and that's what it believe. So I think we have discussed a lot of good pointers. The last thing that I wanted to discuss, I think from my end, it be uh, a lot of time लड़कियाँ सोचने में टाइम लगा देती हैं कि यार ओके फाइन देयर इज़ अ टाइम जिसमें मैं अपनी लाइफ गुज़ारूँगी और फिर मेरी शादी हो जाएगी और फिर मुझे उसके हिसाब से लाइफ गुज़ारनी। Mm. व्हाट्स द राइट माइंडसेट? इफ आई आस्क एज़ अ मेंटर व्हाट्स द राइट माइंडसेट दैट यू थिंक? क्योंकि टैलेंट, जॉब, मैरिज ये तीनों अलाइन नहीं करती। ज़रूरी नहीं है अगर आप शादीशुदा हैं तो आप काम नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है अगर आप काम Yes. करें तो आपको शादी करना लाज़िम है और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में किसी चीज़ का आपको शौक है तो आप वो किसी और की चीज़ों पे आके छोड़ दें। व्हाट डू यू थिंक हाउ गर्ल्स स्पेसिफिकली क्योंकि इफ यू आर डूइंग इट लेट्स बी ऑनेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू डू इट। तो मुझे बस लास्ट एक कोई टिप या ट्रिक देना चाहते हो कि यार लड़कियों को इस तरीके से देखना चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए, परसेप्शन को इस तरीके से बोल्ड आउट करना चाहिए। I feel like कि जितना जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लो ना कि दीज आर थिंग्स आई वांट टू डू एंड दे रियली दीज आर माय वैल्यूज एंड दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू मी, उतना बेहतर है। बिकॉज आई फील लाइक कि येस, एज अ गर्ल वी हैव सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स कि हम सोचते रहते हैं, एंड नॉट गोइंग टू लाई अ लॉट ऑफ द टाइम दैट दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स बिकम टू कंफर्टेबल फॉर अस, तो हम उस कंफर्ट में लेके ना बहुत सी चीज़ों को पुश करना शुरू कर देते हैं कि ओ नॉट द राइट टाइम, और मे बी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। It should be a pride for you whether you're working and you're married. It should be a pride for you whether you're not working and you're married. As long as it's something that you genuinely want to do. Zaruri nahi hai ki you have to be like a entrepreneur or you have to have a job. If you're really happy with, just being a housewife or stay at home mom, that's also very prestigious as well, because
That's even way more. That's a lot of energy you're putting in. But if you do want to, have your own business or do a job, go for it. और जितना क्लियरली जितना जल्दी आप उसको बोल क्लैरिटी कम्युनिकेट कर लो विद द पीपल अराउंड यू कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, this makes me happy, this makes me who I am, it brings me closer to a better version of myself. That's when the ball changes, and you have to go for that as soon as you can, and you have to grab that, but you have to know, you need to do some questioning with yourself कि अच्छा अगर मैं कुछ नहीं कर रही, is it coming from a genuine place, or is it just me being lazy and I'm just putting it out in my environment कि नहीं होगा. ठीक है, आपको लोग रोकेंगे बट कब तक रोक लेंगे, राइट? एक टाइम आएगा कि आप उनको कम्युनिकेट करोगे, आप अपने बिहेवियर से उनको कम्युनिकेट करोगे वेयर दे विल सी कि ओके, दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, दिस इज मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, सो व्हाई वुडंट द पीपल अराउंड यू सपोर्ट यू इफ इट्स मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, राइट? और व्हेयरएज़ अगर वो ऑपोज़िट करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी एनवायरनमेंट भी रिज़ेंट करेगी उस चीज़ को। तो आई जस्ट फील लाइक कि क्वेश्चनिंग अपने साथ ना बहुत ज़रूरी है एंड बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ अबाउट इट। इफ यू जेन्युइनली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, जस्ट गो फॉर इट एज़ सून एज़ यू कैन एंड जस्ट स्टॉप वरीइंग कि किसी को क्या लगेगा, कैसे लगेगा। जो आपके इर्द-गिर्द के लोग होंगे, इफ दे जेन्युइनली लव यू एंड दे वांट टू सी यू थ्राइव, दे विल सपोर्ट यू वन वे और अनदर। ठीक है, दे माइट टेक टाइम बिकॉज़ हर किसी का अलग हेड स्पेस होता है। सबके अलग-अलग पर्सनल एजेंडाज़ होते हैं, पर्सनल बिलीफ्स होते हैं एंड दे नीड टू टेक टाइम विद कीपिंग अप विद स्टफ, बट if you keep going at it and it makes you someone who adds value to your environment, it's someone who brings in better energy, why wouldn't everyone support you with it? Fair enough. I think that's all for this session. We have discussed very good things. I'm happy that we discuss all the pointers, and I'm pretty much sure a lot of people will learn from it. क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है ये समझना, लोगों को ये पता चलना कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरों को मेंटोर दे रही है, उसने भी अपनी चीज़ें उसी तरीके से, उसी पेस में सीखी हैं. So, that is one of the things. So, thank you so much, Anara. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure if anyone wants to have any sort of uh, consultation, they can reach out to you. Just for the audience, please write a proper message. Hi, hello के message का जवाब I'm pretty much sure नहीं मिलेगा आपको, but write a proper message, and I'm pretty much sure Zonara is one of the वेरी गुड फ्रेंड जो कि आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे और आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगी. तो थैंक यू सो मच अनहरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट्स माय प्लेजर You're टू हैव यू ऑन द welcome. सेशन. It was an absolute honor. I had so much fun. Thank you.